ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਆਈ ਐਮ ਪੀਯੂਸ਼ ਜਿੰਦਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇਸ PYQ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ। ਯੂ ਕੈਨ ਲੀਡ ਅ ਹਾਰਸ ਟੂ ਵਾਟਰ ਬਟ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਮੇਕ ਹਿਮ ਡਰਿੰਕ ਫੋਰਸਫੁਲੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਤਲਾਅ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੈਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 85 ਕਲਾਸਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੈਡਿਊਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਅ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਕੜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਰਹੋਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਗਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕੱਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। 2-4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। 2-4 ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਕਵਰ ਥੀਸ ਕਲਾਸਿਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਡੇਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਆਏਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, ਛੁੱਟੀ ਮਾਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਰਾਥਨ ਟਾਈਪਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸਿਸ। ਮੈਰਾਥਨ ਟਾਈਪਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਫਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਬੇਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਚਾਲ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਕੈਬ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਬੁਣੀ ਜਾਊਗੀ ਵੋਕੈਬ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਵੈਟਰ ਬੁਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਕਲਾਸਾਂ 3-3 ਕਲਾਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਜਾਂ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਵੋਕੈਬ ਦੀ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਵਰ ਥੀਸ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿਦ ਬੁੱਕ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਬੁੱਕ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ PYQ ਬੁੱਕ ਹੈ ਆਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਡਿਟੇਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈ ਪਾਓਗੇ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ PDF ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ PDF ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਸਿਰਫ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਖੁਦ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਨੋਟਸ। ਹੁਣ ਨੋਟਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ? ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਿੱਕੀ ਨੋਟਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿੱਕੀ ਨੋਟਸ ਛੋਟੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾ ਲਓ ਇਸ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਬੈਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਟੇਲਡ ਉਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਿੱਕਾਂ ਲਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਆਨਸਰਸ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕਾਪੀ ਲਗਾਉਣਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਡੇਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ ਵੋਕੈਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਵੋਕੈਬ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
सारे स्टूडेंट्स बाकी सारी गल्लां छड्ड दो, ठीक है। हुण आपां इस ते फोकस करांगे। ਤੁਹਾਨੂੰ हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिता जाऊगा, क्योंकि आप इंग्लिश के वीक हाँ, तो हौली हौली चलांगे, ठीक है। 3 या 3.5 महीने अपने को हैगे ने जी, भज्जन की लोड़ नहीं है। डेली के तुसीं अगर 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो तुसीं देखोगे 10 के नाल एक क्वेश्चन के कितने वर्ड्स सीखने को मिल रहे हैं भाई, 5 वर्ड्स, ठीक है। 10 क्वेश्चन कर ले तो कितने वर्ड्स हो गए, 50 वर्ड्स। तो डेली के 50 वर्ड्स माड़े ने तो बहुत होंगे ने, ठीक है। तो एवं नहीं एक दिन के 60 क्वेश्चन कर ले, अगले दिन फिर 20 आ गए ना, डेली के 10 12 15 क्वेश्चन करा करांगे। चलो टाइम इज़ ओवर, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जी। सब तो पहले इन्होंने की कहा, पहला जो वर्ड है इन्होंने कहा सिनोनिम लभना, ठीक है। सिंपल दिता होया किहड़े वर्ड का, कंटैंकरस। कंटैंकरस कहते हैं जी सब तो पहला तो इनू, बिल्कुल सही, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, की कहते हैं जी, कंटैंकरस। कंटैंकरस एक एडजेक्टिव हुंदा, नोट करी चलो, एक एडजेक्टिव हुंदा एंड एदा मतलब हुंदा ऑलवेज कंप्लेनिंग। ठीक है, एक है जी नेचर का इंसान जिहड़ा हमेशा ही दुखी है, कंप्लेन ही करी जांदा, चिड़चिड़ा कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, लिटरल मीनिंग नहीं है, उतो मीनिंग कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। जिमें कोई आप कहने कोई बजुर्ग है ना, तो उन्हों की नेचर तुहानूं पता चेंज हो जाती है, तो उन्होंने कह सकते हैं अ कंटैंकरस ओल्ड मैन। लिखनी है तुसीं हर चीज़ नोट करनी है। अ कंटैंकरस ओल्ड मैन का मतलब की है कि कह जा इंसान है, ये कह जे ओल्ड अंकल ने जिहड़े चिड़चिड़े टाइप के ने, जल्दी ही हर गल ते गुस्सा कर जाते हैं, ठीक है। हुण इहदा सिनोनिम लभना है। पहला है जी इरासेबल। इरासेबल का मतलब की हुंदा, एनीवन। इरासेबल का मतलब की हुंदा, ठीक है। इरेसेबल का मतलब भी यही होता है, somebody who becomes angry easily। जिन्होंने बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, ठीक है। तो सीधा सीधा थोड़ा पता लग गया सिनोनियम किहड़ा पिया, आही पिया जी, ठीक है। इन्हों का पाया होर सिनोनियम इरिटेबल। नोट करी चलो सारे वर्ड्स, इरिटेबल भी कह सकते हैं अपन, बिल्कुल सही। होर की कह सकते हैं, जिहड़ा बहुत जल्दी अराउज हो जाए, ईजीली अराउज्ड, इन्हों भी कह सकते हैं। होर की कह सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड। नोट कर रहे हो भाई, यस और नो? तो कमेंट्स शो नहीं कर रहे भाई, कमेंट कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो? हाँ, एफेबल का मतलब की हुंदा, एनीवन। एफेबल का मतलब हुंदा समबडी हु इज फ्रेंडली। देखो मेरा मोटिव पूरे तो सिर्फ आंसर दसना नहीं है, मेरा मोटिव थोड़ा 5 वर्ड्स सिखाना है, ठीक है। 5 बार मैं बोलूंगा, उस 5 बार तुम लिखोगे, बोलोगे, फिर जाके थोड़े माइंड के जाएंगे। एफेबल मतलब फ्रेंडली। हाँ, तुम एक वर्ड सुनेगा एफिलिएट, सुने एक वर्ड तुम एफिलिएट। एफिलिएट का मतलब होंगे कनैक्शन। जे समझ नहीं आ रहा तो तुम यह फ्रेज तो सुनिया होगा, अ सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल। ये लिखनिया नहीं चीज़ा, तो भाई तेन ही मैं नाल दस रहा, यही चीज़ तो थोड़ा वर्ड याद रहूगा, ठीक है। हुण ध्यान नाल सुनो किवें याद रखना वर्ड, जिहड़ा मैं क्या सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल। एफिलिएशन का मतलब या एफिलिएट का मतलब थोड़ा की दस्या, कनैक्शन। की दस्या, कनैक्शन। तो एफिलिएटेड का मतलब यही होंगे कि कह जा स्कूल है जिहदा कनैक्शन किहदे नाल है, सीबीएसई बोर्ड के नाल है। तो उरे एफिलिएटेड का मतलब यह भी हो सकता कनैक्टेड एंड कनैक्टेड टू या कनैक्टेड विद एंड कंट्रोल्ड बाय। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ स्कूल है
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸੀਬੀਐਸਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਅਰ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਫੀਲੀਏਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਐਕਸਟਰੋਵਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਫਰੈਂਡਲੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਾइंड ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਕੈਲਸ। ਕੈਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਨੀਵਨ। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने वालों पूरा लिखो जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैनू जिन्ना आंदा मैं कोशिश करूंगा सारा दसा। ठीक है, कैलस का मतलब होता है हाँ इनसेंसिटिव। भाई जिन्ना मैं कराऊंगा 3 महीने इन्नी वोकैबुलरी पढ़ लो, इस बाहर कुछ नहीं आता, लिखा के ले लो, अज कोरा कागज भेज दो। ठीक है, क्योंकि मैं नाल थोनों इन्ना कुछ सिखा दूंगा, थोनों और कुछ लोड़ ही नहीं पैनी। कैलस का मतलब है इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव का मतलब समझते हो? रिजिड। ठीक है, रिजिड का मतलब समझते हो? समथिंग जिहदे विच मूवमेंट नहीं हैगी, नॉन मूवमेंट, जिन्होंने मूव नहीं कर सकते। ताई मैं कहना ना, डोंट बी सो रिजिड व्हाइल लर्निंग इंग्लिश। भी रिजिड ना हो, सख्त ना हो जाओ किते। सख्त का मतलब हार्डनड। ठीक है जी, तो हुण एक्चुअल दे विच कैलस का मतलब की हुंदा? कैलस का मतलब हुंदा है कि एक इहो जिहा व्यक्ति जो सामने वाले दे इमोशंस की केयर नहीं करता, कदर नहीं करता। ही इज नॉट सेंसिटिव टू द पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। हुण जिवें मैं क्लास च पढ़ा रहा, ठीक है, तो मतलब कोई स्पीकर है, ठीक है, कोई स्पीकर है, वो कुछ भी बोल रहा है, सामने वाली ऑडियंस नूं, स्पैक्टेटर्स नूं हर्ट हो रहा है, फिर भी उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा। तो नॉट केयरिंग अबाउट अदर्स फीलिंग, लिख लो, नॉट केयरिंग अबाउट अदर्स फीलिंग, दैट इज कॉल्ड कैलस। ठीक है, तो हुण मैं तुहानूं वो भी दसदा, तुसीं देखिया होगा अपने पैर दी अड्डी हुंदी है, ठीक है, ठीक है, तो उत्थे स्किन हार्ड हो जाती है। हो जाते हैं भाई, हार्ड हो जाती है स्किन, तो उन्होंने भी कहते हैं कैलस। ठीक है, तो उत्थे तुसीं याद रख सकते हो वर्ड। तो यदा कंटेंकरस का मतलब की सी भाई, सबनों पता लग गया, रिलेटेड टू एंग्रीनेस या फिर एंग्री, जो जल्दी एंग्री हो जाता है, तो यदा सिनोनियम आऊगा दैट इज इरासिबल। नैक्सट क्वेश्चन, बस मैंने एक बार इन्हें दस दो भी इन्नी डिटेल च ही करना है या शॉर्ट दे विच करना है, प्लीज एक बार तुम मैंने दस दो, क्योंकि अकॉर्डिंगली फिर चलांगे। हाँ, इनडिफरेंट भी कह सकते हैं। वेरी नाइस राहुल। हाँ, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। हाँ, डिटेल ठीक है जी, ठीक है, चलो बी फास्ट। 1 मिनट मिलूगा, ठीक है, चाहे किसी को घट लग रहा है चाहे किसी को ज्यादा लग रहा है, कोई चक्कर नहीं। इक्यूमेनिकल सिनोनियम लभना जी। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। इक्यूमेनिकल का मतलब हुंदा कि यूनिटी कह सकते हो तुसीं इहनूं। ठीक है, भी एक इहो जिहा व्यक्ति जिहड़ा भाईचारे नूं प्रमोट करदा, मतलब व्यक्ति नहीं है, ऑब्वियसली क्वालिटी है, ठीक है, एडजेक्टिव है, नोट कर लो, इट इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, जिहड़ा यूनिटी च बिलीव करदा है, भाईचारे नूं प्रमोट करदा है। तो सब तो पहला जिहड़ा वर्ड है डिनोमिनेशनल। डिनोमिनेशनल का मतलब हुंदा है कि दैट रेफर्स टू सिंगल एंटाइटी, जिहड़ा किसी सिंगल चीज को रेफर करे। इकोनॉमिकल नहीं है, इकोनॉमिकल कहाँ है? इक्यूमेनिकल है भाई, इकोनॉमिकल नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है।
हाँ, ਇਹਦਾ अगर ओपोजिट लिखा ਹੁੰਦਾ ਉਰੇ नॉन डिनोमिनेशनल ਤਾਂ ਇਹ सही हो जाता, क्योंकि ये तो ओपोजिट हो जाता। ਹੁਣ ਉਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल इज द करेक्ट आंसर। मिजरेबल ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ पता होएगा एंड लाउड ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ पता होएगा। मिजरेबल का मतलब क्या होता है? वेरी अनहैप्पी। नोट कर लो जिन्होंने नहीं पता। चलो थोड़ा एक लाउड दस देना। एक फॉरवर्ड होंगे अलाउड, ठीक है। अगर मैं सामने वाले ये चीज कहना चाह रहे हैं भी तेरी आवाज नहीं आ रही, ठीक है, थोड़ा जिहा उच्ची बोल, ठीक है, तो उन्होंने मैं की कहूंगा? प्लीज बी, ए बोलूंगा या बी बोलूंगा? प्लीज बी लाउड या प्लीज बी अलाउड? जल्दी से आंसर करो। प्लीज बी लाउड या प्लीज बी अलाउड? मंजिल कोर्स वधिया रहूगा जी, जगदीश जी, मंजिल कोर्स। प्लीज बी अलाउड, ठीक है। अलाउड पॉजिटिव कंटैक्सट दे विच यूज किया जाता है। जिहड़ा लाउड हुंदा है यह उदों यूज किया जाता है जदों तुसीं नॉइज़ की गल करदे हो सकदा होर भी कंटैक्सट च यूज किया जाए, लेकिन ये ज़्यादातर नॉइज़ की कंटैक्सट दे विच यूज किया। डोंट मेक लाउड नॉइज़ या अलाउड नॉइज़? लाउड नॉइज़, ठीक है, तो रौला ना पाओ। डिनोमिनेशनल का मतलब यह होंदा है कि जदों तुसी किसी भी एक सिंगल ब्रांच दे नाल ही कनेक्टेड हो, ठीक है। एंड नॉन डिनोमिनेशनल का मतलब की हो जाऊगा तुसी सिंगल ब्रांच दे नाल कनेक्टेड नहीं है, बल्कि मल्टीपल ब्रांचेस दे नाल कोई एक ग्रुप है, ठीक है, कोई एक ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, वो एक सिंगल एंटाइटी है, एक होर एंटाइटी है, एक होर एंटाइटी है, ठीक है, एक आ ग्रुप बनाया, एक आ ग्रुप बनाया, एक आ ग्रुप बनाया। अगर तुसी सपोज करो कि तुसी सिर्फ एक सिंगल एंटाइटी दे नाल कनेक्टेड हो तो तुहाडे लई किहड़ा वर्ड यूज किया जाऊगा? डिनोमिनेशनल, ठीक है। हुण अगर तुसी सारे दे नाल ही कनेक्टेड हो तो उहदे लई जिहड़ा वर्ड यूज किया जाऊगा, उहदे लई की यूज किया जाऊगा? इक्यूमेनिकल। तो तुसी जिहड़े तुहाडी इनवॉल्वेशन है, तुसी जिहड़े इनवॉल्वड हो एक ग्रुप दे विच नहीं बल्कि मल्टीपल ग्रुप्स दे विच हो, तो इस करके जिहड़ा सही सिनोनिम होगा की होगा? यूनिवर्सल। नेक्स्ट सिनोनिम लभना है जी, डायफाइनस। पहला ऑप्शन है क्रूअल, दूसरा है लेजी, तीसरा है डेलीगेट, चौथा थिक। डायफाइनस, डायफाइनस का मतलब की होंदा है? एनीवन, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। एक वर्ड होंदा है फैनी। फैनी का मतलब होंदा है अपीयरेंस। नोट करते जाओ, ठीक है। फैनी का मतलब अपीयरेंस। फैनस का मतलब होंदा है, इसका मतलब भी रिलेटेड टू अपीयरेंस होंदा है, ठीक है, या फिर टू शो भी कह सकते हैं। नोट करी चलो। डाई का मतलब की होंदा है? अक्रॉस। डाई का मतलब की होंदा भाई? अक्रॉस, ठीक है। डायमीटर पढ़िया होगा तुसी, डायगोनल पढ़िया होगा। डायमीटर भी की होंदा है? एक एंड तो लैके दूसरे एंड तक। डायगोनल भी की होंदा है? एक एंड तो लैके दूसरे एंड तक। तो डाय का मतलब अक्रॉस होंदा है, ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। नोट करी चलो सर, ये रूट वर्ड्स ने अगे काम आते जाएंगे, ठीक है। तो हुण एदा मतलब की है अपीयरेंस, एदा मतलब की है टू, मतलब दोवें साइड। तो मतलब एक यह जी चीज जिदों आर पार देख सकते हैं, इधरों भी देख सकते हैं, इधरों भी देख सकते हैं। तो इट मीनस इट इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है, कह सकते हो, ठीक। हुण किसी चीज तुसीं आर पार देख पा रहे हो, ठीक है, जिहड़ी उहदी मोटाई होगी वो घट होगी या ज्यादा होगी? सोच के देखो, कोई चीज है उहदे में आर पार देख पा रहे हैं, तो उहदी जिहड़ी चीज की ब्रेडथ है या फिर उहदी हाइट है, ठीक है, या उहदी डेप्थ कह सकते हैं, वो ज्यादा होगी घट होगी? घट होगी ना, तो इट मीनस थिन।
ठीक है जी। तो मतलब समझ आ गया कित्थों लेके आए आप थिन, ठीक है। क्रूअल थोड़ा ਉਹਦਾ मतलब पता है, ठीक है। लेजी का थोड़ा मतलब पता है। डेलीकेट, तो ਇਹਦਾ आंसर सही क्या हो जाएगा, डेलीकेट, ठीक है। डेलीकेट का मतलब भी समझते हो, समथिंग दैट इज नॉट स्ट्रॉन्ग। आप कहना डेलीकेट आइटम्स, भाई ध्यान नाल हत्थ लाई, टुट के गल पै जूगी, ठीक है। ऑपोजिट की हो जाएगा, थिक। ठीक है जी। कोई दिक्कत भाई किसी को ना समझ आया हो? चलो नेक्स्ट प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना है तो आप काफी कुछ सीखेंगे, ठीक है। सीता कुड इजिली ब्लैंक थ्रू रामूज डिजाइन्स, कोशिश करनी है भाई, ठीक है। एंड सारे सैशन में एक बार तुसी प्लीज अगर तुहानू चंगा लग रहा साडे एफर्ट्स एक बार लाइक जरूर करो, ठीक है। तो इट गिव्स अ मॉरल सपोर्ट, होर तो कुछ नहीं है जी। सबनों पता होगा, ठीक है। तो यदा आंसर जो आएगा कि आएगा थ्रू होएगा, ठीक है। थ्रू का मतलब हमेशा ध्यान रखना, थ्रू का मतलब भी की होंगे, आर पार होता, ठीक है। अगर कोई स्ट्रक्चर 3D है, ठीक है, तो अगर आप वन एंड टू अनदर एंड की गल कर रहे हैं तो आप की यूज करते हैं, थ्रू का यूज करते हैं, ठीक है। इन्नी गल याद रहूगी। तो वो गल कर रहा है देखने की, तो मतलब आर पार दिख रहे हैं, तो अगर आर पार दिख रहा है तो और एक यूज कर लेंगे सी थ्रू, ठीक है। जिमें चुन्नी होंगी है तो चुन्नी भी सी थ्रू होंगी है, ठीक है। तो उस कंटैक्सट यूज किया। हुण जो थ्रू वर्ड है तो तुसीं ध्यान नाल देखोगे, इसका मतलब तो यही है बई एक पासे तो चल के दूसरे पासे चलना। एंड जिहड़ा वो एरिया जिन्होंने कवर कर रही है, तो जो एरिया वो की है 3D है, ठीक है। इस करके जेडे भी फ्रेजल वर्ब से वर्ड यूज होंदा है उत्थे इहदा मतलब पॉजिटिव होंदा है, तो उत्थे दा मतलब की होंदा सक्सेस, सॉरी इहदा मतलब की होंदा सक्सेस या सक्सेसफुल कह सकते हैं, ठीक है। जिवें मैं एक वर्ड यूज करा गेट थ्रू, तो गेट थ्रू का मतलब क्या, टू पास। आई होप नोट करते जाओ सर, तुहानू कल्ली कल्ली चीज नोट करनी है। यू पास द एग्जाम, ठीक है। ये होगी सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। हुण तुसी पास की जगह पे केड़ा वर्ड यूज करना, इस तो बाद गेट थ्रू। आई होप यू गेट थ्रू द एग्जाम, समझ गए। मतलब तुसी इन्ना डिस्टेंस ट्रैवल करके तैयारी शुरू करके सक्सेस तक पहुंच गए, आउटपुट आ गए, प्रोडक्टिविटी निकले, ठीक है। होर भी फ्रेजल वर्ब्स ने, गेट थ्रू कराता, ਇਹਦਾ मतलब की है टू गेट सक्सेस। फॉल थ्रू का मतलब की हो जाएगा, टू फेल। जेडी चीज कंप्लीट नहीं हो पा रही, द डील फेल थ्रू, ठीक है। फॉल, फेल, फॉलन, तो केड़ी फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो फेल थ्रू का मतलब की है, जी डील है भाई ये सक्सेसफुल नहीं हुई। गॉट माई पॉइंट, समझ आ गया, यस और नो। हाँ जी, ये सारी क्लासेस ऐप पे अपलोड होंगी। अच्छा स्लो चलिए, ठीक है। नोट कर लो भाई, मैं लिखता हूँ, ठीक है। हाँ जी, शाम ਨੂੰ डेली 7:30 बजे होया करेगी। शैल वी प्रोसीड? ठीक है।
ਕੀ ਆਏਗਾ? मैं क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, एडिशन ब्लैंक 1000 टाइम्स बिफोर सक्सेस, गॉट थ्रू, फॉल थ्रू, फेल थ्रू, बोथ ए एंड सी आर पॉसिबल। PYQ बई जिन्हें बुक खरीदी है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਰਸ फ्री है जी। वैसे तो सब दे लिए फ्री है, सारे देख सकते हो, लेकिन क्लास बाद ਦੇ ਵਿੱਚ प्राइवेट कर दिया करांगे। यही रिकॉर्डिंग ऐप ਦੇ ਵਿੱਚ सॉल्यूशंस ਦੇ इंग्लिश सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ अपलोड कर दिया करांगे, ठीक है जी। जिन्हें आ किताब खरीदी है, फिलहाल की घड़ी 4000 रुपये का सॉल्यूशन है, फ्री दे रहे हैं किताब के नाल, ठीक है जी। किताब 999 दी है, ये सॉल्यूशंस फ्री ऑफ चार्ज ने। जो स्टूडेंट्स किताब बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन च लिंक पे उत्थे जाके बाय कर लो जी, घरे डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। तो केड़ा आंसर सही होएगा? हाँ, सी आंसर सही होएगा, ठीक है। भाई यार प्रेजेंट की गल कर रहे हो तुसीं या पास्ट की गल कर रहे हो? ये प्रेजेंट की गल है या पास्ट की गल है? तो की आएगा? V2 की है फेल थ्रू, चलो कोई गल नहीं। नैक्सट इज सेल थ्रू। सेल थ्रू का किहदा सिनोनिम होएगा? गेट थ्रू का सिनोनिम होएगा, फॉल थ्रू का सिनोनिम होएगा? जल्दी दसो भाई, सेल थ्रू का मतलब की होएगा? फॉल थ्रू या गेट थ्रू? सोचो, बोट नूं सेल कर देना सर आपां, ਇਹਦਾ मतलब टू पास है, बिल्कुल सही जिन्हें भी किया। ਇਹਦਾ मतलब की है? टू पास है। ਇਹਦਾ मतलब थोड़ा डिफरेंट है, टू पास, सॉरी, टू पास easily and quickly। ਜਿਹੜਾ गेट थ्रू है, ਇਹਦਾ मतलब यह है कि बहुत धक्के खादे पहला। ही फाइनली द एग्जाम, पूरे दसो की आऊगा? गॉट थ्रू, सेल्ड थ्रू, ही, चलो समझ आ गया? फाइनली का मतलब पता है की है? फाइनली का मतलब की है? बड़े धक्के खा ले, ठीक है। तो उरे की आएगा? अगर आप लिख देंगे विद मिनिमल एफर्ट्स, कुछ ऐसा लिख दो, तो उत्थे का मतलब की है? सेल्ड थ्रू, ठीक है। तो ही सेल्ड थ्रू द एग्जाम लाइक अ प्रो, लाइक अ किंग, ठीक है, बहुत इजीली होता एग्जाम क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज पुट थ्रू। पुट थ्रू का मतलब की है? टू डू समथिंग, नोट कर लो सर, एंड कंप्लीट इट। ਇਹਦੇ बेसिस ਤੇ PSPCL ਤੇ क्वेश्चन आया हुआ है। PSPCL च क्वेश्चन आया सी 2021 च पेपर होया सी जेड़े, ठीक है जी। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? एनीवन टू सक्सीड या टू गेट सक्सेस इन समथिंग डिफिकल्ट, ठीक है। जिमें कोई आविष्कार कर लिया आप, ठीक है, तो ब्रेक थ्रू कहते हैं आप, तो एक नाउन बन जाता होंगे।
ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਈਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਲਾ ਦੇ ਸਕੂਟਰਸ ਨੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਿੱਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਾਲਡ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੂ ਗੈਟ ਸਕਸੈਸ ਇਨ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ठीक है, यह एक वर्ब है, ध्यान रखना। अगर मैं ऐ लिख दूंगा तो ब्रेक थ्रू एक वर्ड बन गया, तो यह एक नाउन बन जाऊगा, ठीक है। अब मेडिकल ब्रेक थ्रू, ठीक है। तो मेडिकल ब्रेक थ्रू का मतलब की है कि मेडिकल दे विच आपां कोई बहुत बड़ा हासिल कर लिया, कुछ इन्वेंट कर लिया, ठीक है जी। तो समझ आ गया भाई, थ्रू का मतलब की हुंदा कि एक साइड तो दूसरी साइड जाना, ठीक है, समथिंग दैट इज डेंस। तो उत्थों ही आप 4-5 फ्रेजेस वर्ब सीखे, गेट थ्रू, फॉल थ्रू, सेल थ्रू, पुट थ्रू, ब्रेक थ्रू। इन्नी गल क्लीयर होगी, यस और नो, बी फास्ट, फिर आप अगे चलांगे। चलो जो इन्नी गल क्लीयर होगी अगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, रिवाइज करना है घर जाके, ठीक है। मतलब घर तो बैठे ही हो, क्लास तो बाद अपना सौन तो पहला या कह लो क्लास आने तो पहला आधा घंटा डेली रिवीजन जरूरी है। इनू रिवाइज करी चलो, रिवाइज करी चलो, इस तो ऊपर कुछ नहीं। बिल्कुल सही, ठीक है। देखो एक वर्ड आप यूज किया इंटेंट, की यूज किया इंटेंट। इंटेंट का मतलब नोट कर लो, टू बी डिटरमाइंड, इरादे का कोई पक्का होवे इंसान, ठीक है। भी भाई मैं तो एक चीज करूंगा ही करूंगा, तू लाला जो जोर लाना, ठीक है। तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ यूज करते हैं इंटेंट वर्ड। तो सचिन वॉज ऑलवेज इंटेंट ब्लैंक स्कोरिंग रन्स, ठीक है। हुण ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ कोई भी ਇਹੋ जी चीज ਹੁੰਦੀ है ਜਿਹੜੀ चीज पक्की ਹੁੰਦੀ है तो सटीक ਹੁੰਦੀ है, टू द पॉइंट ਹੁੰਦੀ है, टू द पॉइंट। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਨ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਚ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਬਾਊਟ। he came at about 5 PM। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਟ ਅਬਾਊਟ 5 PM, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੀਕ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਚ ਲੈ ਗਏ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਚ ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। नोट करी चलो सर, ये तो ठीक है, लेकिन ये नाल ही क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम च, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई इन्नी गल समझ आ गई, यस और नो? कोई दिक्कत पूछो। ठीक, तो उत्थे तो ऑन यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, ऑन यूज करते हैं जिसे तुसी किसी चीज को लेके श्योर हो, तो इस करके आप और एक यूज करेंगे ऑन। आंसर क्या आ जाएगा, ऑन। एक क्वेश्चन हो रहा है जो एग्जाम च आया हुआ है, देख लो। ही वॉज बेंट टू रीच द एंड ऑफ द बुक इवन इफ इट मेंट स्टेइंग अप ऑल द नाइट। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਰਡ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਟੂ ਬੀ ਡਿਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਰਡ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਇੰਟੈਂਟ, ਇੰਟੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੂ ਬੀ ਡਿਟਰਮਾਈਂਡ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਔਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਔਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰੀਚਿੰਗ। एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुके। चलो समझ आ गया जी,
यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी प्रेपोजिशन आप मंजिल बैच अपना चल ही रहा है, प्रेपोजिशन आप डिटेल्स होर भी डिटेल्स करांगे। पीछे की करा भाई, चलो ठीक है, बिल्कुल सही। अराइव एट एनी डिसीजन, ठीक है, एक ही हो गया भाई, पॉइंट हो गया ना, जिथे तुसी डिसीजन ले लिया होगी पॉइंट हो गया ना, डेस्टिनेशन होगी। अगर ये डेस्टिनेशन है तो डेस्टिनेशन के लिए आप की यूज कर लांगे, एट यूज कर लांगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, ही रीच्ड इन दिल्ली बिफोर अस, he reached at the bus stop after us. सॉरी, केड़ा सही है केड़ा गलत है, प्लीज लाइक द सेशन। सेशन को लाइक करो। भाई जी सब कुछ फ्री पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तुसी सारे ग्रेजुएट हो, समझते हो, ठीक है, ते जो पॉसिबल है वो असी कर रहे हैं। 999 रुपये की किताब दे रहे हैं, प्लस 4000 रुपये का कोर्स फ्री दे रहे हैं फिलहाल की घड़ी। अगली बार किताब आऊगी कोर्स फ्री देवांगे नहीं देवांगे, किताब 1000 की होगी, 1200 की होगी, 1500 की भी, उदों देखी जो। फिलहाल की घड़ी मैं दसता 999 रुपये की किताब है, इदों उपर कुछ नहीं है, आह कर लोगे सफिशिएंट है। अगर तुम पहला सारा कुछ पढ़ चुके हो, अगर दोबारा कोर्स करने ने फिर लक्ष्य बैच कर लो बस। केड़ा सही केड़ा गलत, केड़ा सही है केड़ा गलत है, बी फास्ट। फर्स्ट विच इन नहीं आएगा, सेकंड चैट नहीं आएगा, ठीक है जी। चलो ध्यान नाल देख लो, ठीक है। आपां अराइव वर्ड यूज किया, ठीक है। अगर किसी पॉइंट पे पहुंच रहे हो तो उहदे नाल आपां की यूज करते हैं, एट यूज करते हैं, अराइव एट अ पॉइंट, ठीक है। अगर आपां एरिया की गल करते हैं, ठीक है, जिवें मेरे क्या बस स्टॉप, तो बस स्टॉप एक पॉइंट हो गया, ट्रैफिक लाइट्स एक पॉइंट हो गया, ट्रैफिक लाइट जिथे तुसीं रुकदे हो पॉइंट है ना, तो सिमिलरली बस स्टॉप जिथे दा स्टॉप है वो पॉइंट है ना, ठीक है। देखो बस स्टॉप लिए एट क्यों यूज किया जाता है, मैं तुहानूं समझा देना, ठीक है। अच्छा एक गल दसो, ऑन या एट द रेलवे स्टेशन, या इन द रेलवे स्टेशन, की आएगा दसना। इन द रेलवे स्टेशन, ऑन द रेलवे स्टेशन, एट द रेलवे स्टेशन, जल्दी देने दस दो भाई। और एट क्यों यूज हो रहा है, एट क्यों यूज हो रहा है, कोई क्रिकेट का स्टेडियम है ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ यूज करांगे, इन, ऑन या एट। कोई क्रिकेट का स्टेडियम है ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ यूज करोगे, इन, ऑन या एट।
ठीक है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ यूज कर ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ in, लेकिन रेलवे स्टेशन ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਟ ਕਿਉਂ यूज ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ in क्यों नहीं यूज ਕੀਤਾ, पता क्यों, ठीक है। दिस इज द रेलवे स्टेशन, ठीक है, एक रेलवे स्टेशन है भाई, ठीक है, तो आह ये पटरी है, ठीक है, तो ये पटरी के नाल आ प्लेटफॉर्म है सारा, ठीक है। ठीक है जी, ठीक। सपोज करो ट्रेन आई, ठीक है, तुसीं हुण ट्रेन च एंटर करना है, आ डब्बे ने ट्रेन दे, एंट्री पॉइंट या एग्जिट पॉइंट जो भी कह लो, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो तुसीं ट्रेन नूं बोर्ड कर रहे हो या फिर डिबोर्ड कर रहे हो, ठीक है, एंटर कर रहे हो या एग्जिट कर रहे हो, बेसिकली वो तो की ने पॉइंट्स ने। एंड रेलवे स्टेशन का परपज़ ये होंदा कि तुसीं ट्रेन च बैठ के किते जाना है, बेसिकली यू रेफर टू दीज पॉइंट्स, दैट्स व्हाई एट द बस स्टॉप भी वही सेम केस है, या तो तुसीं कह लो भी जिथे जाके बस रुकती है वो एक पॉइंट है, जिथे तुसीं बोर्ड कर रहे हो वो एक पॉइंट है, कहानी उत्थे घुम घुमा के आ गई। अल्टीमेटली तुसीं कहोगे जो बस स्टॉप होता एक एरिया ना, वो तुसीं इन यूज कर लो, लेकिन वह परपज़ की है, ट्रैवल करना। तो जिथे बस खड़ती है, जिथे तुसीं बोर्ड करते हो डिबोर्ड करते हो, एक पॉइंट है, तो उस करके आप उत्थे की यूज करते हैं एट, ठीक है। चलो फिर मैं क्या दिल्ली, हुण दिल्ली एक पॉइंट है या एरिया है, ये एरिया, ठीक है। अगर यह एरिया तो ये यूज कर लेंगे इन, तो अराइव एट अ पॉइंट, अराइव इन अ लैंड और एरिया, ठीक है। तो यह इन जो हो रहा है ये एरिया के लिए हो रहा है, एट पॉइंट के लिए यूज हो रहा है। तो जो तुसीं रीच लिखते हो, रीच का मतलब ही की हुंदा है, अराइव इन या अराइव एट, तो यह मतलब यही हुंदा, ठीक है। तो अगर रीच के नाल इहदे अंदर ही अराइव इन लिखा हुआ है, तो एक्सट्रा इन लगाने की लोड़ है, हटा दो। सेम इहदे नाल भी एट हटा दो, समझ आ गया। चलो समझ आ गया, चंगी गल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मार्क द एंटोनियम, ऑपोजिट वर्ड लभना जी, ठीक है। ड्रूपी, ड्रूपी का मतलब की हुंदा, एनीवन, वेरी नाइस, वेरी, यह एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है हैंगिंग और मूविंग डाउनवर्ड्स, नोट कर लो भाई जिन्होंने पता नहीं है, हैंगिंग और मूविंग, ठीक है। एग्जाम्पल दवा, मुछा, हिज मुस्टैच इज ड्रूपी, तो मतलब कुंडियां नहीं है, नीचे नूं गिर रही ने, ठीक है। समझ आ गया, यस और नो, ठीक। तो पहला वर्ड है डेंगलिंग, डेंगलिंग का मतलब की हुंदा है समथिंग दैट इज मूविंग फ्रीली, मतलब ये एसेंट्रिक है, ठीक है, इरेटिक है, यदि मूवमेंट है या फिर यदि पोजीशन है, ठीक है, फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर तुम ग्रामर चंगे तरीके नाल पढ़ी है तो डेंगलिंग पार्टिसिपल हुंदा एक, ठीक है। वो बारे जाके आप मंजिल बैच जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट जाके पढ़ांगे। ING फॉर्म डेंगलिंग पार्टिसिपल का काम करती है, कदे एडजेक्टिव का काम करने लगती है, कदे एडवर्ब का काम करने लगती है, वो समझ नहीं आता भी है की चीज। तो दैट इज कॉल्ड डेंगलिंग पार्टिसिपल बिकॉज इट इज मूविंग फ्रीली, वो कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। हुण जिवें तुसीं की है, कोई तुसीं चैन पाई है, वो नग ने, तो नग लटकते रहते हैं ना, वो फ्रीली मूव करते हैं, तो वो भी ये वर्ड यूज किया जाता है। समझ आ गया जी,
ठीक है जी। चलो लूज का मतलब थोड़ा सबनों पता होएगा, ठीक, जिन्होंने नहीं पता मैं सिखा देना भाई। तीन वर्ड होंगे ने, लूज, लूज, लॉस, ठीक है। यह लॉस जो है नाउन है जी, नोट कर लो भाई, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स ने तो क्वेश्चन आते हैं। यह लॉस एक नाउन है जिसका मतलब नुकसान है, ठीक है। आई विल मेकअप फॉर योर लॉस, ठीक है। तो उरे की है नुकसान भाई, मेकअप का मतलब कि कंपनसेट करना, भरपाई करना, ठीक है। मैं भरपाई करूंगा तेरे लॉस की। नेक्स्ट इज लूज, एक वर्ब है, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ टू मिसप्लेस। ही लॉस्ट हिज वॉलेट, कहने ना लॉस्ट, तो लॉस्ट जिथों बनता किथों बनता, लूज तो बनता, ठीक है। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, ठीक है जी। आएगा लूज, ये होंगे अपना एडजेक्टिव, ये की होंगे भाई एडजेक्टिव। ਇਹਦਾ मतलब की होंगे नॉट टाइट, ठीक है जी, समझ आ गया। तो किसी ने कोई टी शर्ट पाई है, किसी ने कोई पजामा पाया या जीन्स पाई है, ठीक है। यूर जीन्स आर की आएगा ए बी सी, आंसर प्लीज। सर मंजिल बैच लै लो जी, मंजिल बैच इंग्लिश का स्पैशल बैच है, ठीक है। एक बार आ जाओ, 3 महीने साढ़े नाल पढ़ो, उदों बाद फिर गल करना। केड़ा एक, ठीक है। तुम्हारी जीन्स टाइट नहीं है भाई, लूज है, ठीक है। चलो इन्नी गल समझ आ गई, ठीक। तो अपराइट का मतलब की होंगे अपनी टूई सीधी करके वर्टिकली बैठना, ठीक है। स्टैंडिंग पोजीशन च बैठना, ठीक है। एंटोनियम लभना, यदा मतलब फॉलिंग डाउन, यदा मतलब ऊपर ਨੂੰ जाना। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एक वर्ड है फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब की होंगे, फ्लैसिड का मतलब होंगे समथिंग दैट इज सॉफ्ट एंड वीक। कोई चीज सॉफ्ट है तो वीक है, ठीक है। तो जी चीज सॉफ्ट है तो वीक है वह भी टिलकूगी भाई, ठीक है। तो वह भी इसका सिनोनियम कह सकते हो तुम ड्रूपी का। ड्रूपी बेसिकली उदों यूज किया जाता जो तुम टायर्ड हो, थके हुए हो, ठीक है। तो उस करके एनर्जी डाउन है, ऑफिस जाके आए हो, सवेर तक काम करके आए हो, ठीक है। तो वह उदों जो मूँह लटकिया हुआ जो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ड्रूपी, ठीक है। आई एम फीलिंग ड्रूपी, मतलब यार मैं थक गया, मैं थक गया, मेरे तो कोई काम नहीं होता, ठीक है। एंड फ्लैसिड, फ्लैसिड मतलब सॉफ्ट एंड वीक। जिवें तुसीं हाथी की स्किन देखी है, वो टिलकदी है ना, लमकदी है ना, दैट स्किन इज फ्लैसिड, ठीक है। नोट कर लो। एलिफेंट स्किन, अगर सर तुम ये चीज़ें नोट नहीं करोगे तो याद नहीं रहूँगा पहला, ठीक है। मैनू क्यों याद ने, मैनू हाथी की स्किन तो याद है, मैं ऑनेस्टली तुम दसा, वो टिलकदी है, लूज है, तो मैं थोड़े वर्ड बना लिया सॉफ्ट एंड वीक, बस। तुम लगता मैनू मीनिंग याद होगा, नहीं, मैनू कंटेक्स्ट से याद है, कंटेक्स्ट तो मैं मैनू मीनिंग याद है। नोट कर लिया, ठीक है। ਹੁਣ ओल्ड एज में गल्लां भी बई लमकन लग जांदियां ने, है ना। तो फ्लैसिड चीक्स भी हो सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राउजी। फ्राउजी का मतलब राइट नाउ आई एम लुकिंग फ्राउजी, थोड़े कोई बाल इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, ठीक है। बेसिकली यू आर नॉट लुकिंग नीट एंड क्लीन, ठीक है। तो भाई आप पता ही आ जाने पढ़ान, आप कदे देखी नहीं कि लग रही है शक्ल, समझ आ गया जी। दैट इज कॉल्ड फ्राउजी। मैसी कह सकते, टाइडी, नीट एंड क्लीन, ठीक है। एंटोनियम टाइडी, हाँ बिल्कुल सही। टाइडी मतलब नीट एंड क्लीन।
इंटैक्ट, ठीक है, कि द कंडीशन इज इंटैक्ट। इंटैक्ट वर्ड भी तुसीं सुनिया होगा, ਉਹਦਾ मतलब ये ਹੁੰਦਾ कि जमा ही नवा पिया, तो रिलेट नहीं कर सकते, मेरे माइंड च आ गया दसता, ठीक है। फ्राउजी मतलब समझ आ गया। फ्राउजी मतलब नॉट अट्रैक्टिव कह लो यार, नॉट, हाँ ठीक है, अट्रैक्टिव नहीं लग रहे तुसीं, ਉਹਦੇ ਉਸ ਕੇਸ ਆਪਾਂ यूज़ कर सकते हैं। जिवें तुसीं सवेरे सवेरे उठे, ठीक है, जो तुहाडे हालात ने जिवें जनरली कि इंसान के हालात होंदे ने, तो फ्राउजी सिचुएशन दे, फ्राउजी स्टेट दे विच हुंदा, ठीक है। आई एम इन फ्राउजी स्टेट, सो आई कैन नॉट कम अप ऑन द कैमरा, ठीक है, तो मैं कैमरे ते नहीं आ सकता भाई, क्योंकि मैं फ्राउजी स्टेट दे विच, ठीक है। अगे तो तुसीं किसी नूं वीडियो कॉल करनी है तो तुसीं आह बहाना ला सकते हो। नैक्सट इज ओस्टेंटेशन। ओस्टेंटेशन का मतलब की हुंदा है, याद रखना एक वर्ड, चलो ऑर्नामेंट तो तुहानूं पता होगा, ज्वेलरी, ठीक है। गिल्डिंग मतलब की हुंदा है, ग्लाइडिंग नहीं है, गिल्डिंग है, ठीक है। ग्लाइडिंग का मतलब की हुंदा है, ਉਹਦਾ पता होगा, GLIDE। ग्लाइड का मतलब की हुंदा टू मूव विदाउट मेकिंग मच एफर्ट्स, ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने, ठीक है, एफर्ट्स कर किते भी ना मूव करना, ठीक है। पैराग्लाइडिंग तो सुना होगा, और बस टंग लो, ठीक है, तो चली चलो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पैराग्लाइडिंग। तो ये ग्लाइडिंग है, गिल्डिंग है, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, सरफेस लेयर, सरफेस लेयर ऑफ गोल्ड, नोट कर लो भाई, ठीक है जी। द वर्ड, एक वर्ड रह गया ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन का मतलब की होंदा है वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, ये तो तुसी बहुत जल्दी सीख जाओगे। ऑस्टेंटेनियस, तुसी एक वर्ड सुनिया होगा, ऑस्टेंटेनियस सब तो ज़्यादा पंजाबियों ते ही वर्ड टुकदा है। कनेडा भाग गया जी कोई, ठीक है, उत्थे जाके चाहे भांडे मांजदा होवे, लेकिन जो वापस आऊगा ਉਹਦੇ ਕੋਲ आईफोन 13 प्रो होगा। वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, दिखावा करना, जेब च खाली है, विआह बहुत वड्डा करना पंजाबियों ने, पैसे चाहे है नहीं, चाहे लोन लेना पै जाए, तो जिहड़ा विआह है ना, एन ओस्टेंटेनियस वैडिंग का मतलब की है कि बहुत ज़्यादा दिखावा करके विआह करा रहे हैं, किया जा रहा है, ठीक है। तो वर्ड किवें याद रखोगे, याद रखना टेंट, एक वर्ड है टेंट। टेंट नाल की हुंदा विआह, याद रहूगा, यस और नो। कितना मीनिंग है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल पढ़ना भाई हम गूगल कर लियो। समझ आ गया, यस और नो। चलो मैं सोचा सी 10 वर्ड्स तक घट्टो घट करांगे, 10 क्वेश्चन तक करांगे, लेकिन अपने 2 घंटे 8 क्वेश्चन ही हुए। बहुत है अज दे लई, 9 बजे मेरी फिर क्लास है, मैंने काम भी करने ने, ठीक है।